नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इस देश को आज़ाद हुए करीब 75 साल के करीब हो गए, लेकिन देश में जो ढांचा है, जो सिस्टम है, उसमें परिवर्तन लगता है कि यदि परिवर्तन आया भी है तो वो चींटी की रफ्तार से आया है। देश में सरकारें बदलती रही हैं, कभी किसी राजनीतिक दल की सरकार आ गई, कभी किसी राजनीतिक दल दूसरे दल की सरकार आ गई, गठबंधन बनते रहे। वो तमाम तरह की उनमें कवायद है कि किस तरह गठबंधन बनते हैं और कैसे सरकारें बनती हैं। सरकारें चाहे किसी भी दल की देश में गठबंधन के तौर पे बनी हो या अपने बलबूते बनी हो, लेकिन सिस्टम में जहाँ तक सुधार की बात है, सिस्टम में ज़्यादा सुधार हुआ नहीं है। सिस्टम आज भी लगता यही है कि उसी जमाने का, लगभग अंग्रेजों के जमाने का सिस्टम देश में चल रहा है। जब मनमानी कानून चलेगा, कानून यदि एक जगह लागू होगा तो वो सरकारी तंत्र उसका मनमानी से उसकी व्याख्या करेगा, अपने हिसाब से काम करेगा। आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, बगैर धक्के खाए या आपका काम किसी भी सरकारी दफ्तर में हो नहीं सकता। तो जब देश का सिस्टम इतना सड़ा गला हुआ है तो निश्चित तौर पर इस सिस्टम में से चिकित्सा का जो क्षेत्र है, जो इतना व्यापक क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है, जो संवेदनशील क्षेत्र है, जो आपातकालीन क्षेत्र है, वह क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। और मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि इस देश में जब चिकित्सा शिक्षा का हाल इतना खराब हो कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी एनएमसी ने देखिए क्या कारनामा किया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कारनामा ये किया है किस तरह से बाधाएं क्रिएट करना, जबकि इन सिस्टम का सारा काम ये है कि जो बाधाएं हैं उनको आगे बढ़ के हटाया जाए। लेकिन हो उल्टा रहा है कि जो सिस्टम है, मौजूदा देश में जो तंत्र चल रहा है, वो तंत्र बाधाएं पैदा कर रहा है जानबूझकर। वो समस्याओं का समाधान करने के बजाय नई समस्याएं कैसे क्रिएट की जाएं, कैसे लोगों के काम अटकाए जाएं, कैसे लोगों को सुविधाएं और रिलीफ नहीं मिल। Hello, I'm here to speak on behalf of foreign medical graduates. As we all know, we were hit by a pandemic, the COVID 19, which affected everybody's lives, be it a common man, a working professional, or the students. The whole world was affected. We had worldwide lockdowns and everything was shut because surviving through the pandemic was the only goal for the whole world. So, all our classes were online for everyone in the world, be it the Indian medical graduates or the foreign medical graduates. While, as per the circular released by NMC dated 30th September 2020, stating that online classes are valid for MBBS students, but at the same time, as per the circular released by NMC dated 22nd November 2023, online classes only for FMGs are invalid, and to compensate that, we have to do 2 to 3 years of internship, while IMG students' online classes are still valid and don't have to do any additional internship. Why is the NMC so biased towards FMGs? This is really unfair for FMGs, and we would request NMC not to show such disparity against FMGs, since it is really tough to do 3 years of internship without any stipend or payment, as we are students and do not have any source of income. Also, as per the meeting on 18 June 2024, it was concluded that those FMGs who got the compensation letter before passing FMGE only need to do 1 year internship. But during the pandemic, due to online classes going on, most FMGs came back to India, and because of lockdown and travel restrictions, our visas got expired. And even though we wanted to go back to our college to do offline classes, we never got visas to go back to our college to continue offline classes and get compensation letters. We as students had no option but to obey the respective government of respective countries and our own countries, and never got the chance to go back to our primary college. So for the FMGs from Philippines, during our final year, also known as clerkship, which is supposed to be clinical rotations in the hospital, just like internship in India. So our college told us to do all the major subjects like medicine, surgery, OBGY, PSM in an NABH accredited hospital in our area in India for 8 months, which we also have certificates issued by the hospitals in India where we did the clinical rotations, and only the minor subjects like psychiatry, forensic medicine, etc. was conducted online. That too through a portal created by a college where we did
case discussions, online patient interviews and checkups, etc. And our final exams too were taken on lockdown browser software, which is the most high-tech exam software developed for the during the COVID-19. So only minor subjects rotations were done online, that too only for 3 months. Lastly, as per the circular released by NMC dated 30th July 2020 and 2nd September 2020, FMGs doing MBBS from countries like Nepal, Bangladesh, Philippines and China were exempted from CRMI. Yet, since COVID-19, we are already doing 1 year CRMI to compensate online classes as per NMC guidelines, which we didn't had to do originally. So, in conclusion, we, the FMGs, would request you to not extend our internship more than 1 year, as it is cruel, unfair, biased, and unaffordable for all the foreign medical graduates. Thank you. इस पर उसका ज्यादा फोकस है। यही हाल नेशनल मेडिकल कमीशन का है। दोस्तों, नेशनल मेडिकल कमीशन अपने तुगलकी फरमान के लिए, मनमाने कानूनों की व्याख्या के लिए, मनमाने ढंग से कानून को लागू करने के लिए पूरे देश में कुख्यात है, बदनाम है। आप देखिए कि अब हालत यह है कि देश में हजारों एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, जो जैसे तैसे आप जानते हैं कितनी मुसीबतों का सामना करते हुए, कितने दबाव का, कितनी तरह की परेशानियों का उनका परिवार और वो किस तरह से वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट अपनी डिग्री प्राप्त करके जब आते हैं, तो यहाँ उनका स्वागत करने के बजाय कि देश को एक डॉक्टर मिलने वाला है। इस देश में चिकित्सा के क्षेत्र में आप जानते हैं चिकित्सकों की पहले से ही भारी कमी है, तो उनके सामने कोई यदि समस्या है, तकनीकी बाधा है, कोई कानूनी प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान करने के बजाय एनएमसी का प्रयास यही रहता है कि इनको जाल में उलझाकर फंसाया कैसे जाए, कैसे इनको तनाव दिया जाए, कैसे इनको और दुख पहुंचाया जाए और रास्ते में कैसे तरह तरह की रुकावट और बाधाएं पैदा की जाए, ताकि ये देश में जो चिकित्सक हैं वो तैयार नहीं हो सके, वो नहीं आ सके चिकित्सा के सेवा के क्षेत्र में। ये मंशा दिखाने के तौर पे कागजों पे भले ये मंशा रहती हो कि हम देश में चिकित्सा की सेवाएं बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन अंदरूनी मंशा इनकी जो हरकतें हैं एनएमसी की, उससे लगता है यही है कि इनकी मंशा ये रहती है। मैं आपके सामने चुनिंदा एग्जाम्पल पेश करता हूं जो एनएमसी की कार्य प्रणाली को बताते हैं, और न केवल एनएमसी की कार्य प्रणाली को, बल्कि ये एनएमसी तो एक एग्जाम्पल है, देश का सारा सिस्टम उसमें भांग घुली हुई है। और सरकार चाहे कोई सी भी आ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी की आ जाए, चाहे कांग्रेस की आ जाए, चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन इनका सिस्टम बदलता नहीं है। तो दोस्तों, हाल ये है कि एनएमसी ने तुगलकी फरमान जारी किए हुए हैं, बहुत सारे पहले भी जारी किए हुए हैं, मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे इस बात को लेकर। तो अब तुगलकी फरमान क्या है? अब तुगलकी फरमान यह है कि जो एफएमजी, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जिन्होंने अपनी कोरोना के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी, तो वो अपनी पढ़ाई यदि उन्होंने एफएमजी का जो टेस्ट दिया है, आप इसको इस तरह समझें कि एफएमजी के टेस्ट से पहले जिन्होंने वो पढ़ाई का जो पीरियड रह गया था, वो थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम का, उन्होंने यदि वो एफएमजी टेस्ट के बाद किया है पीरियड कंपनसेट जो किया है, वो उसको नहीं मानेंगे, वो उसको नहीं मानेंगे। एफएमजी उन्होंने टेस्ट पास कर लिया, उसके बाद वो कंपनसेट करने गए, उसको वो नहीं मानेंगे। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये साफ कह दिया कि जो ऐसा नहीं कर पाए उनको 3 साल या 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। आप देखिए तुगलकी फरमान जो है ये हिटलर के तरीके से एनएमसी कैसे कानून बना रहा है, और देश के बच्चों के जो डॉक्टर्स हैं भावी, उनके भविष्य में कैसे कैसे बाधाएं पैदा कर रहा है। इस देश में पहले चिकित्सा की सेवाएं इतनी हालत खराब है, इतनी खस्ता हालत हो रही है, उसमें और कैसे इजाफा किया जाए और बढ़ोतरी कैसे की जाए, ये एनएमसी कर रहा है। तो ये तो रहा दोस्तों एक मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा आप सुनिए। दूसरा मुद्दा ये है कि हजारों की तादाद में ऐसे एफएमजी हैं जो कोरोना पीरियड में आ गए, लेकिन वहां पर चूंकि लंबे समय तक, जैसे चाइना है, चीन में लंबे समय तक उसने पाबंदी लगा रखी थी कि कोई आएगा जाएगा ही नहीं, तो वो स्टूडेंट किसी की 2 महीने की क्लास रह गई, किसी की 4 महीने की रह गई, तो उनको इंडिया में कंपनसेट कराने के बजाय आपने ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि इन सबको जो है वो 3-3 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। मतलब किसी ने यदि 20 दिन क्लास छोड़ दी, यदि किसी ने 2 महीने या 6 महीने छोड़ दी, तो अब आप उसको 3 साल के लिए लपेट रहे हैं। आप देखिए इनका काम ये है, ये चाहते
तो समस्या का बड़ा आसान समाधान है और वो कोई भी एफएमजी ग्रेटरी इनको जाके समझा सकता है। लेकिन ये सुनने और मानने को इसलिए तैयार नहीं है कि लोकतंत्र के नाम पर जो तानाशाही चल रही है देश में, ये उसके परिचायक हैं। ये एनएमसी का जो स्वायत्तशासी संस्थान है, केंद्र सरकार के अधीन आता है, ये उसके द्योतक हैं इस बात के कि ये किसी की परेशानी में उसकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि नई परेशानी कैसे खड़ी की जाए। तो ये इन्होंने, अब आप खुद सोचिए कि जब किसी भी कंट्री ने बॉर्डर सील कर रखा हो और कोई आ जा ही नहीं सकता हो, तो वो एफएमजी कैसे वापस कंपनसेट करने चीन जा सकते हैं या किसी दूसरे देश में जा सकते हैं। यूक्रेन में आप जानते हैं युद्ध के हालात हैं, आज भी चल रहे हैं और लंबे समय से चले आ रहे हैं। तो जब ऐसे हालात हों और किसी की यदि वो डिग्री में से कोई कुछ महीने कम रह गए हों या प्रैक्टिकल के या थ्योरी के कम रह गए हों, तो वो देश में भी कंप्लीट कराए जा सकते हैं। कोई अब ये नहीं होगा कि आप मतलब चूंकि आपके 4 महीने कम है तो 4 महीने की कीमत आपको 3 साल तक इंटर्नशिप में चुकानी पड़ेगी। ये देखिए आप कितनी मानसिक भारी तनाव में वो हजारों देश के लाखों स्टूडेंट होंगे जो इन हालात से गुजर के जैसे तैसे देश में सही सलामत आए हैं, कोरोना से बचा के जैसे आए। उस हालात में कितना प्रेशर था आप जानते हैं, एयरलाइंस बंद थी, बॉर्डर बंद था, लोगों के साथ कितनी भारी परेशानी हो रही थी, लोगों को की जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो रहा था। जैसे तैसे वो लोग वापिस इंडिया आए और अब एफएमजी ने ये एनएमसी ने ये गाइडलाइन में कर दिया कि साहब इनको ये छूटें नहीं दी जाएंगी, इन पर ये नए नियम लागू होंगे। दोस्तों आप खुद देखिए, जिस देश में चिकित्सा व्यवस्था का, चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का इतना बुरा हाल हो कि लोग हाथों में डिग्रियां लिए हुए घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको एनएमसी इस बात के लिए सर्टिफाइड नहीं कर रहा कि हाँ अब ये डॉक्टर के तौर पर एलिजिबल हैं और इनको देश में प्रैक्टिस करने की छूट होगी इंटर्नशिप करने के बाद। उन पर भी वही नियम लागू होना चाहिए जो औरों पर नियम लागू हुआ है। हालांकि अभी नेशनल मेडिकल काउंसिल ने सैद्धांतिक तौर पर दूसरे मामले में छूट दी है कि अब वो इंटर्नशिप एक जिन्होंने कंपनसेट एग्जाम से पहले कर लिया, एफएमजी के एग्जाम से पहले कंपनसेट कर लिया, उनकी 1 साल की इंटर्नशिप होगी। ये अभी भी जो, और ये भी कितने भारी धरना प्रदर्शन हड़ताल और दबाव के बाद पूरे देश से जब एफएमजी जुटे और उन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किया एनएमसी के सामने, तब ये बात उन्होंने स्वीकार करी। अब सवाल ये कि क्या ये जो स्टूडेंट हैं जिन पर ये नई गाइडलाइन, दूसरा जो रूल लागू हो रहा है कि वो जिन्होंने एफएमजी के टेस्ट से पहले अपना कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं किया, उनको वो 3 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो क्या अब वो इसको वापस करवाने के लिए फिर धरना प्रदर्शन करेंगे? क्या वो वापस पूरे देश से इकट्ठे होंगे? बजाय उनका रास्ता स्मूथ करने के कि जल्दी से जल्दी देश को डॉक्टर मिले, जल्दी से जल्दी देश में चिकित्सा की सेवाएं बेहतर हो सकें, ये एनएमसी न करके उल्टा काम एनएमसी कर रही है कि उनके मार्ग में आप बताइए उनको कितनी भारी मानसिक और आर्थिक परेशानियों का उनके और उनके परिवार को सामना करना पड़ रहा है। और उन पर एनएमसी ने एक तलवार लटका दी है ऊपर से कि अब आपको ऐसा करना पड़ेगा। मतलब एनएमसी का काम यह है कि किसी भी तरह देश में चिकित्सा की सेवाएं बेहतर हों, जल्दी से जल्दी डॉक्टर तैयार हों, ताकि देश में जो डॉक्टरों की कमी है वो देश को मिल सके और उससे जो हजारों मरीज वंचित हो जाते हैं चिकित्सा सेवाओं से, उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल सके, उनको राहत मिल सके। तो ये करने के बजाय एनएमसी तुगलकी फरमान जारी कर रहा है। पहले तो आप जानते ही हैं कि लंबे समय तक, अभी भी आप ये देखिए कि एनएमसी की गाइडलाइन के बावजूद भी देश की बहुत सारी जो राज्य चिकित्सा परिषद है उन्होंने मनमाने ढंग से अपनी व्याख्या कर रखी है कानूनों की। कोई राज्य 1 साल मान रहा है, कोई राज्य 2 साल की छूट दे रहा है, कोई छूट दे ही नहीं रहा, वो कह रहा है हम सिर्फ डोमिसाइल को देंगे। मतलब ये देश लोकतंत्र नहीं है। हर स्टेट अपनी मनमानी, अपनी आप ये कहें कि ऐसा अराजकता का हाल है देश में कि कानून लगता नहीं है कि कुछ है। हर अधिकारी जो चिकित्सा परिषदों में बैठा हुआ है, जो पदाधिकारी सरकार द्वारा नॉमिनेटेड है, नियुक्त हैं, वो अपनी मनमर्जी करने को तैयार है और उनकी कोई सुन नहीं रहा। मजेदार बात यह कि देश का जो चिकित्सा विभाग है, जो केंद्रीय मंत्रालय है, उसको भी फुर्सत नहीं है। अभी नया गठन हुआ है चिकित्सा मंत्री का, सरकार का देश में, और चिकित्सा मंत्री को इन सब समस्याओं को कोई मतलब नहीं है, जबकि उसका मूल काम चिकित्सा मंत्री का यह है कि देश में डॉक्टर्स कैसे जल्दी से जल्दी मिल पाए, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हो पाए, ये उनको काम करना चाहिए था।
तो उम्मीद यह की जानी चाहिए कि एनएमसी को सद्बुद्धि आए। ये जो चाइना से और इधर से करके आए हजारों एफएमजी ग्रेजुएट्स हैं, उनको उनके सामने नई समस्या क्रिएट करने के बजाय उनके मामले में गंभीरता से सहानुभूति पूर्ण तरीके से विचार किया जाए और उनकी समस्याओं की बात सुनी जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि एनएमसी बात सुनने को तैयार नहीं है। वहां पर यदि आप जाएंगे तो आपसे कोई मिलता ही नहीं है। आप यहां से टेलीफोन करें और अपनी आप कोई समस्या बताएं तो वहां कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है इस बात के लिए कि आपको रेस्पॉन्स कोई दे सके। तो अंत में देश में यही होना है दोस्तों कि ये स्टूडेंट जब एक होंगे, जब ये वहां धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख मतलब एनएमसी और केंद्र सरकार ये चाहती है कि ये जो स्टूडेंट हैं, ये जो वंचित है, जिनके साथ अन्याय किया जा रहा है, ये वहाँ धरना प्रदर्शन करें, ये वहाँ भूख हड़ताल करें, ये वहाँ आंदोलन करें। आप बताइए, डॉक्टर जिस देश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे उस देश में क्या बाकी रह जाएगा। इस देश की तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है कि ये देश कैसा है। एक तरफ तो हम पूरे देश में ये बात करते हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, हम विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं, 2047 तक हम ऐसा कर लेंगे, हमारा विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो क्या इसी तरह विकसित राष्ट्र बनाएंगे? पूरे विदेशों में हमारी इन मुद्दों को लेकर क्या खिल्ली नहीं उड़ेगी? क्या हमारा मजाक नहीं उड़ाया जाएगा कि जिस देश में चिकित्सक हाथ में डिग्री लेकर ये गुहार कर रहे हो कि हमें छूट दी जाए, हमें चिकित्सक बनने के लिए रजिस्ट्रेशन हमारा किया जाए, हमको लाइसेंस दिया जाए, उनको नहीं दिया जा रहा है जो प्रॉपर विधिवत तरीके। और ये बताइए, ये कानून देश के मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर लागू नहीं होते। जो एफएमजी ग्रेजुएट पर ये लागू कर रहे हैं एनएमसी, वो उन पर लागू नहीं होता है। वो भी कोरोना के पीरियड में सारी पढ़ाई लिखाई उन्होंने ऑनलाइन की, उन पर ये लागू नहीं किया। उनको कोई कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है, वो स्मूथली आराम से चलेंगे। आप लाखों रुपए खर्च करके 50 परेशानियां उठाकर कोरोना के पीरियड में जान खतरे में डालकर आप ये डिग्री करके आए उनके सामने, और आपने एक नई बाधाएं खड़ी कर दी। उन बाधाओं को हटाने के बजाय आप लगातार बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं। ये दोस्तों इनका काम रह गया है। ये मोटी पगार पाने वाले, मोटी चमड़ी वाले लोग हैं, इनको कोई कुछ समझ में नहीं आता। इनको किसी के दुख दर्द से, देश के विकास से, देश की चिकित्सा सेवाओं से लगता है कोई इनका सरोकार नहीं है। बाधाएं पैदा करना इनका काम है। किस तरह चिकित्सक जो, जब चिकित्सा जैसे क्षेत्र के जो चिकित्सक हैं एफएमजी, वो जब धक्के खा रहे हो तो देश की आम युवाओं की हालत क्या है। आपने नीट का परिणाम देख लिया, उससे पहले भी तमाम जो परीक्षाएं हुई हैं सब में चीटिंगों के मामले आए हैं। ऐसा शायद ही कोई स्टेट हो और शायद ही कोई परीक्षा हो जिसमें चीटिंग के मामले नहीं आए। उन पर क्या बीतेगी बताइए आप। ये पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था का ढांचा है दोस्तों। इस ढांचे को जंग लग चुकी है, ये ढांचा सड़ गल चुका है। इसके लंबे मेजर ऑपरेशन की जरूरत है। और ये मेजर ऑपरेशन चिकित्सक जो है वो एकजुट होके सबसे पहले मरीजों का वो ऑपरेशन बाद में करें, जब अपने फील्ड में जब वो प्रैक्टिस करें, पहले वो इन संस्थानों का और सरकार का ऑपरेशन करें। इन पर दबाव बनाएं और एकजुट हों। जब तक एकजुटता नहीं आएगी, लामबंद नहीं होंगे दोस्तों, सुनवाई बिल्कुल नहीं होगी। कोई नहीं सुनेगा, यहाँ पर किसी को फुर्सत नहीं है। सरकार तभी सुनती है जब लोग सड़कों पे धरना प्रदर्शन करते हैं, सड़कें आ जाते हैं, जाम करते हैं, आमरण अनशन करते हैं, हड़ताल करते हैं, तब सरकारों के या एनएमसी जैसे संस्थानों के कानों पर जू रेंगती है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? मेरा प्रयास है कि मैं एफएमजी या मेडिकल के क्षेत्र के दूसरे ऐसे इशू उठाता रहूं और आपका समर्थन मुझे मिलता रहे। आप मेरी आवाज़ को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाएं। इसी उम्मीद के साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें, और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।